हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एनआईएस बोर्ड का जो है सोशल साइंस का चैप्टर, जिसमें आज हम करेंगे चैप्टर 27 जिसमें होगा आज शांति और सुरक्षा यानी पीस एंड सिक्योरिटी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है एग्जाम व्यू से। और ये चैप्टर जो रहेगा हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हो, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, जिस मर्जी बोर्ड के बच्चे हों, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इवन कि जो बच्चे कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक होने वाला है। लेकिन आपको पता ही है कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we have discussion most important chapter here, peace and security. This is the most important chapter for the all class student. There is a first here point arrive, peace and security. This is the most important, peace and security. First of all, here understanding means. What is the means and securities and peace? To begin with, let's understand the means of peace and security. The following interesting story may be help you. First of all, see there a peace. Come here of peace. Peace here. Once a king offered a prize to be artist who would be paint the best picture on the peace. Many artists try. The king looked at all the painting and shortlist two so that he could be finally select once and the best painting. One's picture show a calm lake and perfect mirror for the mountain all around it. And overhead was the blue sky with the white cloud and beautiful reflect in the lake. And everyone thought that it was a perfect picture of peace. The other picture also had a mountain, but those were rugged and the above. Above was a stormy sky from which rain fell and which is a lightning played. Down the side of mountain in the house forming a waterfall releasing and water at the great force was also depicted, and bird behind the waterfall in a bush. A bird had built a nest and was the feedings here babies in a perfect space. This is the most important piece here. Which painting do you think won the prize? The king closed the second picture. Do you know why? The king started the reason because space does not mean to the absence of the noise, troubles and disturbance. Space means to be a midst of all this and still remain, claim your heart. This is space. Do you think that is a painting selected by the king reflected space in their true sense of the term? Space really does not mean a state of mind or condition with a complete absence of disturbance or conflict. In fact, complete absence of disturbance or the conflict in a human world is the impossible. We are trying to understand peace in a societal, national and international context here, and not in the context there the human do not be exist. We may be therefore define it as a flow.
The pace is a social and political condition that ensure a development of individual society and nation, and is a state of harmony characterized by the exit to the healthy relationship. It is a condition related to their social or economical welfare and equality. It is also related to a working political order and that serve true interest of all. In the context of extra nations and international, there is international and international relation. Peace is not a mere absence of war or conflict, but also is the presence of social, culture, economical understanding and unity here. And second here, security. The word security also appear in our daily conservation in the newspapers or in official discourses here. The reference point of security range from the individual, institutional and regional, national and international levels. All of us take up various measures to be ensure our homes or area where we live in. We know that a minister and other VIPs are the provided security individually. Security arrangements are made for a key, the governmental and other important institutions are contain a region that are under threat. We also heard about the national and international security, and these multiple uses of the word security indicated their varied meanings. In a general term, it means a security condition for a feeling free from fear. Free from fear, it also means the safety of the individual on the institution or regions or nation and the world. However, in it is a most of basic sense, security impels to freedoms from the extremely dangerous threat. It is also related to be threat that are endanger core value like human rights. And the next point here, peace and security. This is important. Well, the accepting there are varied perception of both the words, it is evident that a peace and security are inseparable and combined together it is a condition and very individual institution regions nations and the world move ahead without any threat. In this condition, regions are national and generally more stable domestically, likely to be a democratically is governed and respectful to the human rights, and confess not only generates threat and fear, but also is hampers economics, social and political advancement here. And the next point here, traditional and new understanding of peace and security. This is important here. When we are talk about the peace and security, we mostly relate to it's a traditional nation that has been to the focus since the age on the dangers of military or army conflict are their threats. And the source of dangers has been to the nations threatening to be take or began suspected to take a military action against the other. And this dangerous sovereignty, independence and territory integrity of nation. And also the leave of its the people as a measure of ensure peace and security the cases of the threat of military action as a sorted out by the concerned nation and threat of by bilateral agreement or a long-term threat for not taking a military action against to each other is important, also ensuring to peace and security the cases of threat of military action. The nation also take up preventives measuring by increasing their defense capabilities and deploying more army force on their borders. And some also adopted balance of power approach through the entering into a threat with other nations to be take joint action in the case of military attack of any one of them. As we know that international organization like United Nations has been to be created to save the
humanity from the threat of war, our army confessed. This is important. But a new and not traditional nations of peace and security is much broader and goes beyond military's threat to be included a wide range of dangerous and threat of human extinction. This is a conceptualization include not only religions and nations, but also individual on the communities and the humankind at a large. These notions in the primarily addressed to the individuals. It is true that a protection of people from a foreign attack is a necessary condition for the peace and security. But it is not there be all and end all. But is not be all and end all. In fact, peace and security is to be seen as the precondition to be social, economics, and development, and to be a maintenance of human dignity. The new notion of peace and security also include a freedom of individual from a hunger, freedom from want, and this is an epidemic, environmental degradation, and exploitations and subhuman treatments here. In this background, the new notion of peace and security is based on threat owing to the military attack. And this threat may be from terrorism, insurgencies, genocides, and general of human died, healthy epidemics, narcotics, and trade and irrational use of nation resources. This is the most important here. यहाँ जो हम आज चैप्टर करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, शांति और सुरक्षा। देखिए, शांति और सुरक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण होता है हर एक क्षेत्र के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक आया शांति और सुरक्षा, जो कि चैप्टर भी यही है, शांति और सुरक्षा। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि शांति और सुरक्षा का वास्तविक अर्थ होता क्या है। शांति में किन बातों को लिया जाता है, सुरक्षा में किन बातों को जो है महत्वता दी जाती है। अगर अर्थ की बात करें तो ये साफ करता है कि आरंभ में हम निम्नलिखित दिलचस्प कहानी की सहायता शांति और सुरक्षा का अर्थ समझने की यहाँ कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम शांति के बारे में जानेंगे, शांति का यहाँ पर अर्थ क्या है। चलिए एक कहानी के अंतर्गत शांति को जो है समझने की कोशिश करें। एक बार एक राजा ने कलाकारों को शांति पर सबसे अच्छा चित्र जो है रंगीन चित्र बनाने का पुरस्कार देने की घोषणा की। राजा ने जो है कलाकारों को ये कहा कि आप मुझे एक रंगीन चित्र बना के दें जिसमें शांति की बातों को जो है दर्शाई गई होगी। कई कलाकारों ने कोशिश की। राजा ने सभी चित्रों को देखा और 2 चित्र छांट लिए, जिनमें से अंततः एक सबसे अच्छा चित्र चुन सके। एक चित्र में एक शांत झील के चारों तरफ जो है पहाड़ से एक सही दर्पण के रूप में दर्शाया गया था। ऊपर नीचे आकाश में सफ़ेद बादल की खूबसूरती से झील में दर्शाया गया था और हर किसी ने सोचा कि वह शांति का एक सही चित्र था। दूसरे चित्र में भी पहाड़ थे, लेकिन वहाँ विहर और नग्न थे। ऊपर आसमान से एक तूफ़ानी बारिश गिर रही थी और बिजली चमक रही थी। नीचे पहाड़ की बगल में तीव्र गति से बहते हुए एक विशाल झरने के पानी के झाग के रूप में दर्शाया गया था, लेकिन झरने के पीछे एक झाड़ी में एक पंछी का घोंसला भी बना था और पंछी शांति से अपने बच्चों को खाना खिला रहा था। आपको अनुमान कौन से चित्र को पुरस्कार मिला होगा? राजा ने दूसरे चित्र को चुना। आखिर राजा ने दूसरे चित्र को क्यों चुना? पहले चित्र तो बहुत शांतिमय बातों को दर्शा रहा था, तो राजा ने दूसरे चित्र को क्यों चुना? चलिए आगे देखें कि राजा ने दूसरे चित्र को क्यों चुना। आखिर राजा ने दूसरे ही चित्र को क्यों चुना? क्या आप जानते हो क्यों चुना? राजा ने कारण बताया कि शोर, परेशानी या गड़बड़ी की अनुपस्थिति का तात्पर्य शांति नहीं है। शांति का अर्थ है इन सब के बीच में रहकर हृदय में शांति बनाए रखना। यानी आप समझ गए होंगे कि राजा ने दूसरे चित्र को क्यों चुना, जिसमें तूफान गरज रही थी, चारों तरफ पानियों की हाहाकार मची हुई थी, लेकिन फिर भी एक चिड़िया जो था अपने बच्चे को बहुत ही शांतिमय ढंग से भोजन ग्रहण करवा रहा था। तो राजा ने साफ शब्दों में कहा कि शांति का अर्थ होता है जब चारों तरफ परेशानी, चारों तरफ गड़बड़ी, चारों तरफ जो है अराजकता फैली हुई है,
फिर भी आप जो शांति से भरा जीवन जी रहे हो, शांत हो, आपका हृदय शांत है, तो इसी को शांति कहा जाता है। शांति का मतलब ये नहीं होता कि जहाँ पर व्यक्ति एकदम एकांत में चले जाए वो शांति है। शांति का अर्थ है कि आप दुनिया के हर संघर्षों से अपने आप को जो है शांति महसूस करवाओ, अपने आप को दुनिया से अलग रखने की कोशिश करो। कहते हैं वही व्यक्ति जो है सच्चा साधु होता है जो भीड़ भड़क्का इलाकों में, भीड़ भड़क्का जो है समाज के परेशानियों में अपने आप को झेल ले, अपने आप को जो है अनुकूल बना ले, तो वो शांति का सही अर्थ समझ सकता है। इसलिए राजा ने पहले चित्र में जो शांति को दर्शाया गया था उसको न चुन के जो है दूसरे चित्र को चुना जिसमें बहुत सी बातों अशांति की तरफ जो है इशारा कर रहा था। चारों तरफ अशांत था लेकिन फिर भी पक्षी जो है अपने बच्चों को भोजन खिला रहा था। क्या आपको लगता है कि राजा द्वारा चुना गया चित्र सही अर्थों में शांति का दर्शाता है? दरअसल शांति का अर्थ वह मानसिक स्थिति नहीं है जहाँ उपद्रव या टकराव का निरा अभाव हो। वास्तव में मानवीय दुनिया में गड़बड़ी और संघर्ष का पुण्य अभाव असंभव है, क्योंकि अगर दुनिया में आप रह रहे हो तो यहाँ पर तो हर जगह लूट मची हुई है। हर एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को लूटने में लगे हुए हैं। सब कुछ जो है संघर्षमय है। अगर इन संघर्षमय में जो अपने आप को ढाल लेता है वही जो है शांति को प्राप्त कर सकता है। हम शांति को सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं, न कि उस संदर्भ में जहाँ मनुष्य नहीं है। अब जहाँ मनुष्य ही नहीं है वहाँ पर शांति का क्या अर्थ रह जाएगा? हम इसलिए इसे परिभाषित करते हैं कि शांति एक सामाजिक और राजनीतिक स्थिति है जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का विकास सुनिश्चित करती है। यानी शांति से अगर आप राष्ट्र चला रहे हो, शांतिमय ढंग से जो है सभी क्रियाएं हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि दुनिया जो है गड़बड़ी का एक नाम है, संघर्ष का एक नाम है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लूटने के लिए हर समय तड़पते रहता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप अपने आप को अनुकूल ढाल लेते हो, अनुकूल चलते हो, तो इसका मतलब आपको जो है शांति का सही अर्थ आपको पता है। और यह सामंजस्य की स्थिति है जिसकी विशेषता है कि स्वास्थ्य संबंधों का अस्तित्व, और यह अवस्था है जिसका संबंध सामाजिक और आर्थिक कल्याण और समानता से भी है। इसका संबंध एक कार्यशील राजनीतिक व्यवस्था से है जिसमें सबके सच्चे हितों की पूर्ति होती है। यानी सबका जो है हितों की पूर्ति होना एक स्वाभाविक बात बना देता है। शांति के बारे में हमने जाना बहुत दिलचस्प बात थी। अब चलिए सुरक्षा पर भी एक नज़र डालें। तो सुरक्षा देखा जाए तो सुरक्षा का अर्थ क्या होता है? सुरक्षा हमारे दैनिक जीवन की बातचीत में, समाचार पत्रों में, अधिकार परिचर्चा में भी प्रकट होता रहता है। सुरक्षा की बात व्यक्तिगत, संस्थागत, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक होती है। हम सब विभिन्न उपायों के द्वारा अपने घरों या उन क्षेत्रों को जहां हम रहते हैं सुरक्षित करते हैं। हम जानते हैं कि मंत्रियों और अन्य अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा प्रदान की जाती है, जो आपने देखा ही होगा। प्रमुख सरकारी और अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं या धमकियों के दायरे में आने वाले क्षेत्रों के लिए भी सुरक्षा व्यवस्थित की जाती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रयोग उसके विभिन्न अर्थों की संकेत करता है। सामान्य इसका अर्थ है सुरक्षित अवस्था या भय मुक्त भावना। सुरक्षा का मतलब ही होता है कि आपको किसी प्रकार का जो है भय न हो, किसी प्रकार का सुरक्षित की भावना न हो। व्यक्ति, संस्था, क्षेत्र, राष्ट्र, विश्व की जो है कुशलता भी इसका अर्थ निकालता है। हालांकि मौलिक तौर पर सुरक्षा का अर्थ है बेहद खतरनाक संकटों से बचना। आपने देखा होगा अगर जो व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं इसका मतलब वो सुरक्षित हैं। यह मानवाधिकार जैसे बुनियादी मूल्य के प्रति खतरों से भी संबंधित है। देखिए मानवाधिकार का मतलब है दोस्तों कि आज के समय में लोग जो है लूटने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। यानी जो मानव का अधिकार है उसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपके अधिकारों का हनन करता है। ठीक है, आपको अधिकारों को जो है आपसे दूर करता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी ले लीजिए, जिसमें आपको बैंक के द्वारा दिया गया फ्रॉड भी हो सकती है। बैंक के द्वारा एनओसी के रिगार्डिंग आपसे जो है पैसे वसूलने की धमकी भी हो सकती है, या कोई व्यक्ति अपना पावर दिखा के आपको डरा भी सकती है, और कोई व्यक्ति जो है आपका सुरक्षा का हनन भी कर सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो जो मानव अधिकार आपको मिला है बुनियादी तौर से उनको खतरे में डालना, कहते हैं जो हमारा अधिकार है, जो हमारा कर्तव्य है, उन सब का जो है हमारे लिए सुरक्षा का मुहैया कराता है। तो इन चीज़ों को अगर आप खतरे में डालते हो तो इसका मतलब है आपका सुरक्षा जो है खंडित हो रही है।
उसके पश्चात यहाँ पर शांति और सुरक्षा का देखिए क्या है। दोनों शब्दों को विभिन्न अर्थ जानने के बाद यह तय है कि शांति और सुरक्षा अविभाज्य है, यानी दोनों को विभाज्य नहीं किया जा सकता। साथ साथ देखने पर पता चलता है कि यह वह स्थिति है जहाँ व्यक्ति, संस्थाएं, क्षेत्र, राष्ट्र व विश्व बिना किसी खतरे के एक साथ आगे बढ़ते हैं। यानी देखा जाए तो विश्व में किसी प्रकार का खतरा न हो और सभी देश जो है शांति में जीवन यापन करें। लेकिन ये संभव नहीं है। कहते हैं दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है और देख के जलता है, जहाँ शांति और सुरक्षा बनाए रखना बहुत ही दुष्कर्म कार्य है। चाहे कोई भी कितना भी महान क्यों न हो, शायद सुरक्षा और शांति जो है स्थापित करना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। चाहे आप जिस भी काल में चले जाओ, जिस समय चले जाओ, हर काल में जो है युद्ध, लड़ाई, मारकाट, ठीक है, धोखा, फ्रेब, करप्शन रहा ही रहा है। और इसलिए जो है मानव सभ्यता चलती ही आ रही है और झेलती ही आ रही है। इस अवस्था में क्षेत्र, राष्ट्र सामान्य रूप से शासित और मानवाधिकार के प्रति आदरवान होते हैं। संघर्ष न सिर्फ संकट और भय उत्पन्न करती है, अतुल आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रगति को भी बाधित करती है। तो संघर्ष सिर्फ संकट ही और भय उत्पन्न नहीं करती है, ये कई तरह की बातें जो है सामने लेके आती है। आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक प्रगति भी इससे बाधित होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिस देश में अशांति भंग होता है, सुरक्षा पर सवाल उठता है, उस देश जो है कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है, कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। आगे पॉइंट देखें तो शांति और सुरक्षा की पारंपरिक और नई समझ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि शांति और सुरक्षा की पारंपरिक और नए समझ क्या है। जब हम शांति और सुरक्षा की बात करते हैं तब हम अक्सर इसे परंपरागत धारणाओं से जोड़ देते हैं जो युगों से सैनिक और शस्त्र संघर्ष या धमकी खतरे पर केंद्रित रही है। आपने देखा होगा इतिहास पलट के, वहाँ पर हर समय संघर्ष ही चला है, सैनिक युद्ध ही चला है। कहते हैं जनजीवन का जो है मौत के मुंह में ही समाया है। और ऐसा भी आधुनिक युग में भी देखने को मिल रहा है। अपनी प्रभुता के लिए हर देश दूसरे देश पे अटैक कर रहा है, दूसरे देशों की शांति को जो है भंग कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। खतरे का स्रोत एक देश द्वारा दूसरे देशों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की धमकी भी हो सकती है। जैसे आपको पता है कि 1945 से लेकर 1991 तक जो शीत युद्ध की दौर चली थी, वो एक तरह के जो था धमकी ही था। ठीक है, एक तरह से धमकाना, एक तरह से डराना, एक तरह से बातों की युद्ध ही थी। और ये देश की प्रभुता, स्वतंत्रता, अखंडता का अतिरिक्त उसके लोगों के जीवन के लिए भी खतरा पैदा कर देती है। कहते हैं ये युद्ध सिर्फ दो विचारधाराओं की होती है, लेकिन इसके कारण न जाने कितने जीव जंतु जो है मौत के घाट उतर जाता है। आपने कभी देखा होगा जब इंसानों की मौत होती है तो कहते हैं 300 सैनिक मारे गए, लेकिन कभी आपने ये कभी सुना है कि इतने पक्षी मर गए, इतने जो है जीव जंतु मर गए? ये नहीं सुनते होगे आप कभी भी। कभी कहीं युद्ध होता है तो ये नहीं देखते कि और कौन जीव जंतु मर रहे हैं, सब तो जीव और जंतु ही हैं। हम भी जीवों में ही आते हैं। हम अपनी कल्पना और गणना तो कर लेते हैं अपनी जीवन का कि हम बहुत महत्वपूर्ण हैं, इंसानों का जीवन खतरा में पड़ गया। लेकिन कभी इन युद्धों के कारण जीव जंतु, पेड़ पौधों का जो नुकसान होता है, कभी किसी ने सोचा इस बात का? मुझे नहीं लगता कि इन बातों को कोई सोचता होगा। युद्ध में भी आप देखिए टीवी पर, न्यूज़ पर, हर जगह सिर्फ लोगों के विनाश लीला ही दिखाई जाती है, लेकिन उन जीव जंतु का लीला कोई नहीं दिखाते जो बेचारे तरफ तरफ को अपने के साथ छोड़ देते हैं। ये बहुत दुखदायक परिस्थिति है। कहते हैं अगर दो विचारधाराओं के युद्ध हो रहा है, दो लोग आपस में युद्ध कर रहे हैं, तो जर्नल सी बात है उन दोनों को ही आपस में लड़ा दो तलवार लेके। आम लोगों को क्यों घसीट रहे हो इसमें? अरे युद्ध तो तुमने वहाँ पर जाके गलत बोल के आए हो, वो व्यक्ति ने गलत भाषण दे के आए हैं, आम नागरिक तो दे के नहीं आई थी ना। अब हमने उनको चुना। आज की दुनिया एक ऐसी है, अखाड़ा बन गई है, जहाँ पर हम जिन व्यक्तियों को भी चुनते हैं वो एक बार अपनी सत्ता हासिल करने के बाद वो कुछ भी नहीं सोचते। उनका तो सिर्फ अपनी बनी रहती, देश की बनी होती नहीं है।
अगर किसी भी देश की बनी होती तो ये युद्ध को परहेज करते। वो सोचते कि आम नागरिकों का क्या हाल होता होगा, जीव जंतु को क्या होता होगा, पेड़ पौधों को क्या होता होगा जब हम बड़े बड़े मिसाइल बंदूक गोलियां चला रहे होते तो। लेकिन उनको इनके पड़ी ही नहीं है। उनको तो अपनी प्रभुता मनवानी है कि भाई हम सबसे श्रेष्ठ हैं, इतिहास में नाम दर्ज करवाने हैं। अरे भाई, इतिहास में नाम दर्ज करवा के क्या करोगे? इतिहास में जो ऐसे ऐसी घटनाएं होती है, लोग गाली ही देते हैं ऐसे लोगों को कि देश को उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो गलत है। युद्ध किसी भी समय काल के लिए सही नहीं होता है और इससे जो है हमारा प्रभुसत्ता, स्वतंत्रता, अखंडता खतरे में पड़ जाती है। शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करने के रूप में सैनिक कार्रवाई के खतरे के कारण को संबंधित देशों के बीच द्विपक्षीय समझौता एक दूसरे के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई द्वारा समाप्त किया जाता है। देश अपनी प्रतिरक्षा की क्षमता बढ़ाकर सीमा पर सशस्त्र बल की जो है तैनाती करके रोकथाम कदम भी उठाते हैं। कुछ देश दूसरे देशों के साथ ये संधि करके भी कि किसी भी देश के खिलाफ सैनिक कार्रवाई होने पर वे संयुक्त कदम उठाएंगे। शक्ति संतुलन की जो उपमा भी अपनाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बात को हम देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम समझौता के द्वारा भी इन युद्धों को जो है हम टाल सकते हैं। कहते हैं दोस्तों, शासक वही शासक है जिसके लिए हर जीव जंतु, हर एक पर्यावरण महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं अपनी महत्वाकांक्षाओं में इनको बर्बाद करना कदापि सहिष्णुता नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि मानवता के युद्ध एवं सशक्त संघर्ष की धमकी से बचने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण भी किया गया है। कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम कहते हैं यहाँ पर लेना जो है गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन आज के समय में कुछ भी करने को तैयार नहीं है। अगर अंतर्राष्ट्रीय संगठन कुछ करती तो आज युद्ध के चपेट में सारे देश नहीं होता। लेकिन शांति और सुरक्षा की नई और गैर पारंपरिक धारणाएं बहुत ही व्यापक रूप से फैली हुई है तथा मात्र सामरिक धमकियां तक सीमित नहीं है। इसमें संपूर्ण मानव अस्तित्व के प्रति व्यापक खतरे एवं आकांक्षाएं सम्मिलित है। तो हम तो मानव अस्तित्व की बात करते हैं, क्या हमने कभी जीव जंतु अस्तित्व की बात किया है? तो संभवतः नहीं किया है। और इस अवधारणाओं में केवल क्षेत्र और राष्ट्र की ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत और समुदाय और पूरी मानवता भी शामिल किया जाता है। यानी देखा जाए तो इसमें हर एक जीव जंतु सम्मिलित होता है। सच तो यह है कि यह धारणा प्राथमिक रूप से व्यक्तियों पर केंद्रित है और यह भी सच है कि विदेशी आक्रमण से लोगों की रक्षा करना शांति और सुरक्षा के लिए काफ़ी आवश्यक है। लेकिन यह ही सब कुछ नहीं है। वस्तु शांति सुरक्षा को सामाजिक आर्थिक विकास एवं मानव गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक शर्त के रूप में देखना जाना चाहिए। शांति सुरक्षा की नई धारणा यह स्पष्ट करती है कि व्यक्तियों को जो है भूखमरी से मुक्ति करने और उन्हें उनकी ज़रूरतें, बीमारी एवं महामारियों से मुक्त कराने और पर्यावरणीय आक्रमण पर रोक लगाने पर लोगों के शोषण और अमानवीय व्यवहारों से बचने के लिए शांति सुरक्षा की आवश्यकता है। कहते हैं पर्यावरण आक्रमण को रोकना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से पर्यावरण नष्ट हो रही है, कहते हैं इंसान तो रो देते हैं, इंसान तो चिल्ला देते हैं, लेकिन ये पर्यावरण नहीं चिल्लाती है, नहीं रोती है। इनका सिर्फ हृदय फटता है कि इनके जो है पूरी तरह से दुर्दशा लोग बिगाड़ देती हैं। इस पृष्ठभूमि में शांति सुरक्षा की नई परिभाषा में सामरिक आक्रमणों के अलावा भी अनेक आकांक्षाएँ शामिल हैं और ये आतंकवाद, विद्रोह, जाति संहार, मानवाधिकार से वंचित रखने, स्वास्थ्य संबंधी महामारियाँ, नशे पदार्थ का व्यापार, प्राकृतिक साधनों का विवेकहीन उपयोग, ये संबंधित आकांक्षाएँ हो सकती है। देखिए, कहते हैं संकट हमारे देश में बहुत है। अगर इन संकटों को जो विवेकपूर्ण रूप से समाधान नहीं किया गया तो आने वाला समय में हमारी अस्तित्व भी नहीं बचेगी। कहते हैं इंसान जितना मर्जी अपने आप को आधुनिक की आड़ में पहुँच जाए, इवन की दुनिया के कहते हैं ना ग्रहों पर भी कब्जा कर ले, लेकिन इंसान कभी इंसान बन नहीं सकता जब तक वो पर्यावरण को सुरक्षित नहीं कर लेता। हम मानव तभी बनेंगे जब हर एक जीव जंतु को जो सुरक्षा निश्चित करेंगे। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया, अच्छा लगा, समझ के लिए ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि त्रिपाण स्टडी सेंटर आगे बढ़े, ठीक है, और आपके लिए भी बहुत कुछ करने की जो संकल्प रखे, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। और शेयर करने का कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है।
पहली बार वीडियो देख रहे थे तो लोग सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में वैसे सेव कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत कुछ है और ये आप देख भी रहे होगे, समझ भी रहे होगे, इसलिए सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।